What's up guys, this is Rajma Singh and I'm once again back with the third part of the video, that is historiography development in the West. So in the previous two videos we have seen how the development of the historiography have taken place in the traditional manner in the ancient period of time, how the people use the different kinds of the method in order to preserve their history. In the first part of the video we have discussed about what is historiography, what kind of the steps you need to carry out while performing any historical research, that we have seen what is the difference between the natural science, physical science and the history while carrying out its experiment or while carrying out its research. So all these things we have seen in the first and the second part of the video. Now we are going to begin with the third part of the video, that is the modern historiography. So basically, as I mentioned, the video is going to be in the bilingual form, so we are going to discuss each and every topic in Hindi as well as in English and will. So the first one is your concept is modern historiography. Now we are going to see what is modern historiography. क्या होता है modern historiography? What are the things we need to carry out or we need to keep in mind while carrying the modern historiography or while writing the modern historiography, or how does the research in the modern period of time is basically conducted out. तो कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. So let's see now four main characteristics of modern historiography. As we all know, there are some characteristic of each and everything. Whenever you are carrying out any kind of the research, it's carries some characteristic. उसके कुछ characteristic होते हैं that we need to remember. So in the same manner, modern historiography also have some characteristics. So what is it? Let's study now. First one, its method is based on scientific principle. Yeah, it's very much pretty much sure that whenever you are carrying out a research, now we are in the world that we don't believe anything without any evidence. हम किसी भी चीज़ को without evidence के हम नहीं मानते हो. So that's why there should be the scientific principle. उसके पीछे एक scientific principle होना चाहिए, एक scientific you can say आपका objective होना चाहिए कोई भी research carry out करने के पीछे. तो ये सबसे ज़्यादा important चीज़ होती है. So this is the first characteristic of you can say modern historiography. It begins with the formation of relevant question. Yeah, whenever, as I mentioned that whenever you want to carry out any kind of the research, you must have some kind of the question in your mind, that why I'm carrying out this research, what is my motto in carrying out this research, what are the things, what are the answer I'm going to get from this kind of the research. So that must be in your mind. ये आपके माइंड में पहले से ही फॉर्मुलेट होना चाहिए, पहले से ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आप उस किसी चीज़ को, बिकॉज एनी थिंग यू कांट कैरी आउट विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव. आप बिना ऑब्जेक्टिव को कोई भी चीज़ को कैरी नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव इज द मस्ट, scientific principle is a must. That's the first point you need to mention while writing the modern characteristic, or you can say characteristic of modern historiography. Second, these questions are anthropocentric. When I say anthropocentric, what does it mean? It means anthropocentric means the study of human being. It's the anthropology. It's known as anthropology. So from the point of view of ह्यूमन बींग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस पूछना चाहिए. मतलब ह्यूमन से जो रिलेट करता है, जो ह्यूमन से रिलेट करता है, उस टाइप के आपके क्वेश्चंस होने चाहिए. It means that the questions are about the deaths of the members of the ancient human societies of a particular period. मतलब ये किससे रिलेट करेगा कि जिस पीरियड की आप हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, आप मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो, आप स्टोन एज मैन की हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो, आप मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो. तो वो ह्यूमन बींग कितना एडवांस था, वो किस हद तक इस कार्य को परफॉर्म कर सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट ही कैन कैरी आउट दिस पर्टिकुलर रिसर्च, क्या वो कर भी सकता था या नहीं कर सकता था. हाइपरबोला नहीं होना चाहिए. जैसे एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर लोगों के पास विमान था, विमान से उड़ जाते थे. हाउ इज़ इट पॉसिबल? विमान की जो इन्वेंशन ही हुई है वो रिसेंट एज में हुई है, वो मॉडर्न एरा में हुई है, मॉडर्न सेंचुरी में हुई है. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में हमारे जो एंसेस्टर थे वो विमान से उड़ते होंगे. सो ऐसा हाइपरबोला नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए. तो एंथ्रोपोसेंट्रिक आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या हमारे जो पूर्वज थे ये सारी चीज़ें कर सकते थे. सो दैट शुड बी योर क्वेश्चन. इस टाइप का आपका क्वेश्चन होना चाहिए. नेक्स्ट, हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन डिड्स. जैसा कि मैंने मेंशन किया, ये किसी भी डिवाइन एंड ह्यूमन डिड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही कि डिवाइन पावर्स पर डिपेंड करता है. मतलब जैसे कि आप कोई भी हो, आई डोंट मीन टू से अबाउट दैट कि आप यहाँ पर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हो कि भगवान आए, अंतर्याम हो गए, ऐसा हो गया, भगवान ने अपनी नज़र दृष्टि डाली, सारी चीज़ समाप्त हो गई. ये सारी चीज़ें नहीं. हिस्ट्री जो है, साइंस जो है, दे डोंट बिलीव इन द डिवाइन क्रिएशन. वो डिवाइन क्रिएशन के अंदर नहीं मानते हैं. दे रिक्वायर एविडेंस फॉर दैट. अगर उसके रिलेटेड कुछ एविडेंस होगा तो वो सारी चीज़ों को मानेंगे. वो ह्यूमन डेट्स को फॉलो करते हैं, ना कि डिवाइन डेट्स को फॉलो करते हैं. तो दो प्रिंसिपल यहाँ पर आपने समझ लिया है. पहला जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल होना चाहिए व्हाइल राइटिंग द हिस्टोग्राफी. सेकंड, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन होना चाहिए विच इज टोटली बेस्ड ऑन द ह्यूमन डेट्स. वो ह्यूमन डेट्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करना चाहिए. ओके, so this was the, you can say, the two important characteristic of historiography. Third one is your answer to these questions are supported by reliable evidences. मतलब जो भी आप क्वेश्चन आप क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्वेश्चन बनाया कि कैसे हुआ होगा, हाउ डज अशोका डिफीटेड द कलिंगा इन द वॉर
in the war of Kaling. How does Babur defeated Ibrahim Lodi in the battle of Panipat first? How does the Afghan defeated the Marathas in the battle of Panipat third? तो ये जो क्वेश्चंस आप बनाते हो उसके रिलायबल आपको एविडेंस आंसर्स जो आपको चाहिए वो आप रिलायबल एविडेंस से ढूंढते हो। रिलायबल एविडेंस मतलब उसके रिलेटेड जो भी कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, आपके पास उसके रिलेटेड कुछ भी इंस्क्रिप्शन अवेलेबल होंगे, कॉइन्स अवेलेबल होंगे, या जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, आप उससे कंपेयर करते हो अपने आंसर्स को, तब जाके आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हो, आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो। यू सिंपली कांट से दैट या मराठास आर द बॉर्न माइटियर, दे आर द सुपेरियर ब्लड्स, दैट्स व्हाई दे कैन डिफीट एनीबडी. Such kind of the hypothesis is not, you can say, relevant while writing the historiography. It's not like that. You need to prove it first. You need to prove it by carrying out the various experiment, by bringing out the various document into account, and by reading that all document, and by correlating all the documents with that particular respective you can say phenomena, you can give answer to the following question. Okay, next. हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ द मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ द पास्ट ह्यूमन डेट्स. या सिंपल, जो हिस्ट्री होता है ये ह्यूमन डेट्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है. मतलब हाउ द ह्यूमन बींग्स यूज टू क्या परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी इन द एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, हाउ द ह्यूमन बींग्स यूज टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज इन द मिडिवल पीरियड ऑफ टाइम, इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ टाइम, कैसे कैसे उन्होंने परफॉर्म किया, क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या एडवांसमेंट हुआ है, इतने इस तरीके से उन्होंने कैसे सारी चीज़ों को परफॉर्म कर लिया. सो दैट्स you can say that specially it shows the graph of the human development. Basically history आपको एक human development की ग्राफ को शो करता है कि human being कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ चुका है, ये सारी चीज़ों को शो करता है. So these are the 4 important characteristics of the modern historiography which we need to remember while writing the answers to this particular question. तो पहला जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल होना चाहिए. सेकंड जो होना चाहिए, जो आप क्वेश्चन पूछते हो वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू होना चाहिए, उसके अंदर डिवाइन क्रिएचर का कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए. थर्ड वन इज वॉट एवर द आंसर्स यू आर given to the respective question that must be supported by the relevance document. उसको relevance document से support मिलना चाहिए, और you can say it should be correlated with that particular incident. Fourth one, it shows the graph of the human journey. Human journey's graph means what? How does the human being develop from the ancient period of time to the medieval period of time as well as to the modern period of time until now? किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है. Now see, it is said that the modern historiography with above characteristic has its root in the ancient Greek historical writing. सही बात है. कोई भी चीज़ की जो हमारी मतलब जो आज हमारे पास है, हम ह्यूमन बींग के एग्जिस्टेंस की बात कर ले या ह्यूमन बींग्स के पास कोई भी जो टेक्नोलॉजी उसकी बात कर ले, उसको हम एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम अपने एंसेस्टर्स से कोरिलेट करते हैं. तो इन द सेम मैनर द राइटिंग ऑफ हिस्टोग्राफी वाज आल्सो रिलेटेड विद द एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द ग्रीक. आप कहीं भी देख लो, चाहे जोग्राफी आप पढ़ लो, आप साइंस पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, ग्रीक का नाम हमेशा आता है बिकॉज दे वर द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन. बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करते थे. तो वहाँ के जो एक फेमस राइटर थे, जो यू कैन से फिलोसोफर थे, जिनका नाम था हेरोडोटस. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज मेंशन ओवर हियर. हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म. इसमें कोई दो राय नहीं, हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक टर्म है. और एक कहाँ से आया है उसको देखते हैं हम. हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BCE, या हेरोडोटस हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है. हेरोडोटस को एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे. मतलब फिलॉसफी बहुत अच्छी थी उनके, बहुत अच्छे तर्क रखते थे वो. एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में भी जहाँ पर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनकी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा अपने जनरेशन से आगे थी. तो उन्होंने इस टर्म को, हिस्ट्री को डिफाइन किया था. यूज इट्स फर्स्ट फॉर हिज बुक इंटाइटल द हिस्टोरीज, और उन्होंने पहली बार अपनी किताब के लिए ये टर्म को यूज़ किया था, द हिस्टोरीज, और यहाँ से ये शब्द आया आपका हिस्ट्री. सो हेरोडोटस बेसिकली कॉइन्ड दिस टर्म हिस्ट्री. आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. नाउ ये हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी. अब जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ हिस्टोग्राफी को लेके कि व्हाट आर द साइंटिफिक मेजर्स do we need to carry out while carrying out the historical research or while writing out the historiography. उसकी शुरुआत यूरोप से कैसे हुई, what are the things they took into consideration, what are the things they followed while writing the historiography, that we are going to see. So let's see now. Till the 18th century Christian era, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. Yeah, there is no doubt whenever we are talking about science and technology, यूरोपियन कंट्रीज़ को मतलब आप कंसिडर ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता है. बिकॉज यू कैन से दे आर नोन एज द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस. या यूरोपियन कंट्री से आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था. साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे एडवांस कंट्री मानी जाती है, तो वो यूरोपियन कंट्रीज मानी जाती है. तो टिल द 18th century क्रिश्चियन एरा तक हमारे यूरोप के यहाँ पर फिलोसॉफी और साइंस बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका था और इनको फ़ायदा भी हो रहा था. स्कॉलर बाय देन हैड केम टू बिलीव इन द
पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। या पहले जो कि जैसा कि हमने मेंशन किया था, इन द एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम पीपल यूज्ड टू बिलीव इन द डिवाइन क्रिएचर, वट एवर इवेंट हैज हैपेंड, या इट इज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड की वजह से हुआ है। बट नाउ द पीपल, द फिलोसोफर इन द you can say western world, or you can say in the developed country, now they started to think that we can apply the scientific perspective while writing history। जब हम हिस्ट्री लिखेंगे तो हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को फॉलो कर सकते हैं, हम उसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं हाउ दिस पर्टिकुलर इवेंट हैज़ टेकन प्लेस। ये सारी चीज़ें इनको कहाँ से मिली, ये सारी चीज़ें इनको कहाँ से गट्स आए, विद द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच हैज़ टेकन प्लेस इन यूरोपियन कंट्रीज। ओके, नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी। तो आप जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस करती थी, हिस्टोग्राफी पे फोकस करती थी, हिस्ट्री पे फोकस करती थी। पहले की जो फिलोसॉफी होते थे सिर्फ भगवान को मानना, हाँ भगवान की कृपा थी, ऐसी हो गई, ये हो गई, इंद्रदेव नाराज़ हो गए, ये नाराज़ हो गए, वो नाराज़ हो गए। तो अब इस तरीके से इनकी फिलोसॉफी नहीं रहती थी। अब इनकी जो फिलोसॉफी थी वो साइंटिफिक बन चुकी थी, मतलब साइंटिफिक नेचर की वजह, साइंस की वजह से क्यों ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ों के बीच में अब उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया था। नाउ सी, prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourse revolving around the divine phenomena। As I mentioned earlier कि पहले जो हमारे फिलोसोफर्स होते थे वो सिर्फ डिवाइन डीड्स में मानते थे, मतलब ईश्वर की वजह से, जीसस क्राइस्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस दिस माइट हैव हैपन, बिकॉज ऑफ अल्लाह's ग्रेस इब्राहिम लोदी हैज़ बीन डिफीटेड बाय बाबर, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया था। हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगिंस टू चेंज, अब ये सिनेरियो चेंज हो चुका था। इन 1737 क्रिश्चियन एरा द गॉटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। तो 1737 के, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, दैट गॉटिंजन यूनिवर्सिटी was founded in Germany. It is one of the you can say most relevant university, as we are talking about the Takshashila and Nalanda in India. So in the same manner, Göttingen University was one of the famous university in the European country which was founded in Germany in the era 1737. This university was the first time had an independent department of history. Later other German university also became center of historical studies. तो इस तरीके से ये पहला यूनिवर्सिटी बना था you can say in the world to include history as a subject in on the university level को history as a subject मानने वाला ये पहला यूनिवर्सिटी बना था, गॉटिंजन यूनिवर्सिटी, जिसने हिस्ट्री को अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया था। उसके बाद तो बहुत सारे जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ आए, बहुत सारे जर्मन्स के स्कूल आए, तो उन्होंने हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट माना। सो इन दिस मैनर द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्टोग्राफी हैव स्टार्टेड, और उनकी सीड्स जो थी इस तरीके से शुरुआत हुई थी, स्प्राउट आउट हुई थी यूरोपियन के अंदर कि किस तरीके से हिस्टोग्राफी को डेवलप मिला। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द you can say this topic, that is notable scholar, and this is going to be the end of the video. So आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।